Namaste everyone and welcome to this session which is titled an orientation session of the GOAT ACE batch. Now what is this ACE batch? ACE batch is a flagship batch for preparation of the next stage after your CAT written exam is over. So which means you're expected to get a lot of calls of IIMs, of non-IIMs through various exams like NMAT, SNAP, EXIT, CMAT, CAT obviously, and so on and so forth. So once you get those calls, the next stage deals with a lot of interesting areas like written ability test, like group discussions, like extempore interviews obviously. So this particular batch will help you become extremely well prepared so that when you appear in those interviews or the next stage of exercises that you're expected to be a part of, you feel super confident and you're able to convert those calls that you get. So let me give you the agenda very quickly as to what is it that will cover as far as this orientation session is concerned. So we'll be looking at the next stage. What is it that the next stage involves? We'll also look at weightages and certain common myths. बहुत common क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि सर मेरा तो लास्ट रैंक्ड कॉल है, गलती से कॉल आ गया है, ऐसा लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि मुझे कॉल आएगा, तो क्या चांसेस है कन्वर्ट करने के, शुड आई इवन अपीयर फॉर इंटरव्यू, इस तरह की कुछ क्वेश्चंस यू माइट हैव. समटाइम्स यू माइट फील ओवर कॉन्फिडेंट, सर मेरा कैट का स्कोर या किसी पर्टिकुलर एग्जाम का रिटन स्कोर बहुत ज़्यादा है और ये कॉलेज रिटन का वेटेज बहुत ज़्यादा देता है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि मेरा वैसे भी कन्वर्ट होना है, तो ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं करी तो भी चलेगा. Sometimes you might have certain kind of those questions. We'll take that up in with myths and weightages. Then we'll look at the program structure. What is it that you're going to get when you go through all the set of sessions in this particular GOAT ACE batch? What would be the mutual expectations? So there'll be certain expectations that you will have from this particular course and batch. There'll be certain expectations that we will have at AptiGoat from you to make sure that you work hard at your backend so that your preparation becomes very solid. So we'll discuss that part, and finally the final objective of this particular batch. So let's start with the next part with a very interesting puzzle. Now you might be wondering, why am I starting with a puzzle? Puzzles are an integral part of any interview process. You'll find a lot of interviews asking you random puzzles. One of the most commonly asked or famous puzzles across interviews is this door puzzle. But there is a very important reason why I have put this particular puzzle, and which we'll discuss after you've tried the puzzle, I've shared the solution, and then we'll understand what was the purpose of keeping this puzzle at the start of orientation. So you can see 3 doors here. इन 3 डोर्स में आपको दिख रहा है कि डोर 1 के पीछे एक कार है, डोर 2 एंड डोर 3 के पीछे 2 गोट्स हैं. नाउ थिंक ऑफ देम एज टॉय गोट्स. टॉय की गोट्स हैं which are not having a lot of value, but the car behind door 1 is an actual car worth, let's say, millions. Now typically you would have seen इस तरह के गेम शोज जहां पे पार्टिसिपेंट को पता नहीं रहता है कि किस डोर के पीछे क्या है, and they are randomly asked to guess the door जिसके पीछे कार होगी, और अगर वो निकल गई सही तो they will get that actual car as the prize. So think of it like this kind of a puzzle where you are expected to choose a door. अभी just for example I've shown you कि door 1 के पीछे कार है. It could be anywhere among door 1, door 2, door 3. So this is not the real picture. The idea is that you have a fair bit of understanding कि puzzle में क्या possibility है एक door के पीछे. So let's look at this situation now. So if you look at this particular situation, you will realize that there are 3 doors. 3 doors आपके सामने हैं. तीनों में से 2 doors के पीछे कोई ना कोई टॉय गोट है और एक के पीछे there is a car. I want you to pick one door. Let's suppose you pick door 2 because आपको लग रहा है कि door 2 के पीछे कार है. Objective is to win that car and you will play intelligently. So let's assume that you've picked door 2. Now door 1 और door 3 के बारे में आराम से सोच के देखना. कार हो सकता है डोर 2 में हो, कार हो सकता है डोर 1 में हो, कार हो सकता है डोर 3 में हो, वी डोंट नो किसके पीछे कार है. अगर आपने डोर 2 चूज करा तो ध्यान से सुनना, कैन आई से दिस फॉर श्योर दैट डोर 1 और डोर 3 में से किसी एक डोर में तो गोट है. भाई कार तो किसी एक ही डोर में है. जब बचे हुए जो 2 डोर्स हैं उसमें एक में तो टॉय गोट होगी, एक के पीछे हो सकता है कार हो, एक के पीछे हो सकता है कि अगेन टॉय गोट हो. तो 2 डोर्स में टॉय गोट हो सकती है, एक में टॉय गोट हो सकती है, एक में तो डेफिनेटली है. Now you have picked door 2. I will open one of the doors which has a toy goat.
मैं ये ओपन कर दूंगा। सपोज मैंने डोर 3 ओपन कर दिया और आपको दिखा दिया कि उसके पीछे टॉय गोट है। नाउ लुक एट द पजल का सिनेरियो, यू हैव पिक्ड डोर 2, यू कुड हैव पिक्ड एनी डोर, आपने डोर 2 पिक करा था, मैंने डोर 3 ओपन कर दिया बिकॉज मुझे पहले से पता था कि इसके पीछे गोट है, तो ये गोट वाला डोर मैंने ओपन कर दिया। अब डोर 2 और डोर 1 में से किसी एक के पीछे एक्चुअल कार है और एक के पीछे टॉय गोट है। आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन टू चेंज योर चॉइस इफ यू वांट टू राइट नाउ। तो अब मैंने एक डोर ओपन कर दिया है एंड यू हैव अ चॉइस, विल यू वांट टू स्टे विथ डोर 2 और विल यू वांट टू स्विच टू डोर 1? What will you do? This is the puzzle to maximize your chances of winning the car. So it's a question, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने डोर 2 चूज करा, मैंने डोर 3 ओपन कर दिया जिसके पीछे टॉय गोट थी, कार नहीं थी। डोर 1 डोर 2 में से डेफिनेटली अब किसी एक के पीछे कार है। आपका ओरिजिनल चॉइस है डोर 2 विच इज स्टे विद द करंट डोर, डोर 1 इज स्विच। सो क्वेश्चन इज विल यू स्टे और विल यू स्विच टू मैक्सिमाइज योर चांसेस। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। If this question is clear, pause for a minute or two, reason it out yourself, why do you want to stay or switch and so on, and then write down your answer, and then I'm going to reveal what is the correct answer or what could be the way to handle such questions in the interview. Alright, so I'm assuming that you have already paused, you have understood the puzzle, you have marked or written down your answer. The correct answer to maximize your chances for winning the car is to switch. अगर आप स्टे करते हैं तो कम चांस है जीतने का, अगर आप स्विच करते हैं तो ज्यादा चांस है। दिस इज एज पर प्रोबेबिलिटी। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस पजल पैन्स आउट मैथमेटिकली एंड देन विल अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू में सर प्रोबेबिलिटी नहीं आता है तो ऐसे सिमुलेशन करके देख थोड़ी पाएंगे। हमें आंसर पता है अनदर थिंग, बट अगर नहीं पता हो डिफरेंट पजल्स में कैसे रिएक्ट करना है, तो दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पजल। सो once you look at this particular situation, suppose ये 3 doors हैं और इस hypothetical example में somebody has chosen let's say door 2 as we say, कि अगर आप door 2 थे या door 1 थे, जो भी है particular situation में आपने ये scenarios build कर लिए कि किसी एक के पीछे कार है और 2 के पीछे toy goat है। Now look at this situation, let's take this case that you have picked door 1, आपने door 1 पिक करके रखा था और मैंने डोर 3 ओपन कर दिया। कोई सा भी डोर ले सकते थे, मैंने डोर 3 ओपन कर दिया। अब आपके पास चॉइस है कि आप डोर 1 में या तो कार होगी या डोर 2 में कार होगी या डोर 3 में कार होगी, तीनों सिनेरियोस बिल्ड कर लिए। आपने डोर 1 चूज करा था, मैंने ये वाला डोर ओपन कर दिया, सो दिस इज नाउ ओपन। नाउ बिटवीन दीज टू इफ यू स्टे यू विल विन। अगर आप स्टे करते हो तो आप जीत जाओगे। सो दिस इज a good choice for you to stay and not switch, because if you switch to door 2 you will lose the car. Second situation में आते हैं, आपने तो डोर 1 ही चूज करा है जिसके पीछे गोट थी, मैंने डोर 3 ओपन कर दिया, तो ये अब हमारे पास चॉइस नहीं है। यहां पर अगर आप स्विच करते सेकेंड वाले डोर पे तो डेफिनेटली यू वुड हैव वन, तो यहां पर स्विच इज अ बेटर चॉइस। आई होप यू गेट द आइडिया। 3 सिनेरियोस पॉसिबल थे, इस सिनेरियो में स्टे करके आप जीतते, इस सिनेरियो में आपने डोर 1 चूज करा, स्विच करते तो जीत जाते। थर्ड सिनेरियो पे आते हैं, थर्ड सिनेरियो में यू हैव चोजन डोर 1, हम तीनों ही सिनेरियोस ले रहे हैं जहां पे आपने डोर 1 चूज करा है। डोर 1 चूज करके मैं दोनों में से जिसके पीछे गोट है वो ओपन कर देता, तो ये ओपन हो जाता। अब आपके पास दिस डोर एंड दिस डोर, 2 doors आर अवेलेबल। इफ यू स्विच फ्रॉम हियर टू हियर अगेन यू आर गोइंग टू विन द कार, तो स्विच इज अ बेटर ऑप्शन। सो आउट ऑफ 3 पॉसिबल सिनेरियोस 2 आर फेवरेबल फॉर स्विचिंग, 1 इज फेवरेबल फॉर स्टेइंग। तो स्विच करने में प्रोबेबिलिटी 2/3 है, स्टे करने में प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/3 है। सो बेटर चॉइस विल बी टू स्विच। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी और इसके हिसाब से करेक्ट आंसर आपका स्विच है। अगर आप ये एग्जाम इंटरव्यू में, एक्चुअल इंटरव्यू में करेक्ट आंसर दे पाते हो विद दिस काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, फैंटास्टिक। यू हैव शोकेस्ड गुड एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स, यू हैव शोकेस्ड गुड understanding of probability and possibilities, fantastic. What about people who are not very good with probability? तो क्या इंटरव्यू रिजेक्ट कर देगा, अरे पजल था, मैथ्स का पजल था, आपको आया नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। They will want to know the reason for you choosing this. Suppose a very common reason that a lot of people would feel is stay. इस पजल में बहुत सारे लोग स्टे बोलेंगे जिनको आइडिया नहीं प्रोबेबिलिटी का दिल से कि सर क्या ही फर्क पड़ रहा है। जनरल ऑब्वियस
इंट्यूटिव थॉट टिपिकली वुड से कि इंट्यूशन के हिसाब से तो ये लग रहा है कि यार क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप प्रोबेबिलिटी चांसेस के ऊपर प्ले अराउंड कर रहे हो, तो इफ यू स्टे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्विच करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों में से मुझे तो पता ही नहीं है किसके पीछे है, तो हाफ हाफ चांसेस होते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस रीजन से अगर आप दोगे आंसर तो वो थोड़ा गलत है। मेरा सजेशन ये रहेगा दैट यू कैन गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द इंटरव्यू इफ यू चूज योर आंसर एज स्टे। अगर आप स्टे बोलते हैं कि आई वांट टू स्टे विद द डोर एंड द इंटरव्यूअर माइट आस्क व्हाई, so you'll say I am not very sure of the mathematical possibilities, I tried thinking on those lines but I felt कि नहीं बन पा रहा है probability के हिसाब से मुझे कुछ clear view, so अगर वो clear view नहीं बन पा रहा है तो I'll want to stay because of a psychological reason which is my willingness to commit to a choice and take it to a dead end if I am not clear of any other possible better outcomes. तो think of it this way, आप अपने कमिटमेंट के बारे में बोल रहे हो कि यार मैंने अगर किसी चीज को कमिट कर दिया है, मैंने कोई चॉइस ले ली है, तो आई विल स्टिक विथ इट टिल द एंड, दैट इज आल्सो गुड इनफ। दैट्स इन फैक्ट फैंटास्टिक आंसर जस्टिफाइंग कि सर मैथमेटिकली हो सकता है, माइट बी रॉन्ग, दिस माइट नॉट बी द राइट चॉइस टू मैक्सिमाइज, बट मैथमेटिकली आई फेल्ट दैट बोथ आर इक्वल एंड देयरफॉर आई विल स्टिक विथ स्टे। एक क्वेश्चन आता है कि चलो मैथमेटिकली आपको लग रहा है कि दोनों ही बराबर बराबर है, तो फिर स्टिक क्यों कर रहे हो, फिर स्विच क्यों नहीं करते? तो फिर आंसर ये है दैट आई वांट टू स्टिक टू द चॉइसेस दैट आई हैव मेड, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम एंड आई वांट टू अलाइन विद देम माय फ्यूचर गोल। सो ये वाला एंगल साइकोलॉजिकल तरीके से दिया जा सकता है कि यू आर समवन हु वांट्स टू स्टे कमिटेड। फैंटास्टिक आंसर फॉर इंटरव्यू इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द पजल, विच इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। तो इंटरव्यू में अंडरस्टैंड की पजल का आंसर करेक्ट देना इज प्रोबेबली द लास्ट thing that they are looking for in the candidates. आप क्या आंसर दे रहे हो and what is your reasoning behind the puzzles is what they are looking for. So having understood this part, let's move ahead. Some common myths. एक common question आता है, can a single interview make or break my admission? क्या सिर्फ एक इंटरव्यू डिसाइड कर देगा कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा? To a certain extent, yes, and this can be slightly difficult for you to absorb. But it's a good thing and a bad thing depending on where you stand currently. आपका अगर स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि रिटर्न का स्कोर अच्छा है तो आपका इंटरव्यू निकल ही जाएगा, इंटरव्यू खराब हुआ तो भी एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। Think of it this way, there'll be a panel of 2 or 3 people. One of them generally is expected to be a professor who is expected to teach you once you join that B school. तो एक्सपेक्टेशन टिपिकली ये रहेगी कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहां 2 या 3 लोग रहेंगे और वो 3 में से टिपिकली एक पर्सन ऐसे रहेंगे जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में कभी ना कभी आपको पढ़ाएंगे व्हेन यू जॉइन दैट पर्टिकुलर बी स्कूल। नाउ दोस प्रोफेसर्स टिपिकली वुड वांट अ सर्टेन फिट with regards to the candidates that they will want to be seated in the class. तो आपका रिटर्न का स्कोर बहुत अच्छा है, बट अगर आपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा कर दिया that the professor feels that you do not deserve this particular seat, they can give you very less marks in the interview stage, which can be as less as 0. And I know this from a lot of interactions with people who have been a part of panel. I know this from the data that has been shared in certain cases in some of the older years where they have showcased the details of the interviews. FMS used to do that they used to share the details of how many marks they gave to candidates in GD, in interview and in writing assessment test. FMS पहले करता था, तो based on this actual experience I'm sharing that interviewers can give you 0 marks even if you have a 99.8 percentile. आपको 0 नंबर मिल सकते हैं if you have done something to deserve that 0 in the interview. तो casual नहीं होना in the first place. Second, interviewers can give you as high as 10 out of 10 if the weightage is from 20, 20 out of 20 and so on. Another interesting part that I'll take to help you understand something very interesting. इसमें एक बहुत interesting part मुझे समझाना है with regards to what happens typically जब हम इंटरव्यू के कैलकुलेशन पे चलते हैं. So when you look at interview का calculation, think of it this way. मैं एक बहुत standard example ले रहा हूँ. Suppose written का written exam का weightage is, let's assume 70%, और interview का, and you can include the remaining parts की GD होगा, उसमें शायद extempore होगा,
इंटरव्यू का वेटेज मैंने 30 ले लिया। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेजेस। मैं 10 12th और इनकी तो बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेजेस फॉर रिटन एग्जाम। एंड लॉट ऑफ यू वुड बी वरीड कि सर इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम है, 30% ही है, 20% ही है, तो इंटरव्यू से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। एक्सप्लेन व्हाई दैट इज अ मिथ। नाउ रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स कैसे एलोकेट होते हैं? सो कैट का पेपर यू हैड 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चंस मतलब 204 मार्क्स से। अब 204 में से फॉर कैट 2025 दीज आर मैक्सिमम मार्क्स। कैट 2025 की हम बात करें, दीज आर maximum marks 204. Obtained marks for somebody who has got a 99 percentile would be around 83, 84, 81 के आसपास, इनफैक्ट 81, 82 मान सकते हैं अगर स्केल स्कोर की बात कर लें तो 81 मार्क्स है 99 परसेंटाइल के लिए। ठीक है, इमेजिन किसी आईएम ने 99 कट ऑफ रखा है और 99 के नीचे किसी को नहीं बोला, यू आर द लास्ट रैंक पर्सन टू बी कॉल्ड। जिसके क्लोज टू 99 पॉइंट, फॉरगेट अबाउट 100 परसेंटाइलर्स, वो आउटलायर्स हैं, पर जिसके 99.8 परसेंटाइल है, 99.9 परसेंटाइल है, उसका स्कोर लेट्स अज्यूम कि उसका स्कोर पर्सन का है लेट्स से 110 समथिंग लाइक दिस, 110 के आसपास 99.8 बन गया होगा। तो अगर 30 मार्क्स का गैप है, सो यहां पर डिफरेंस कितने का हो गया? 30 मार्क्स का। सो लॉट ऑफ पीपल फील सर इसका तो कन्वर्ट होना ही है, जब 99 वाले को वो बुला रहे हैं तो 99 वाले का चांस बहुत कम है, वो तो सिर्फ बुलाने के लिए बुला रहे हैं। सिर्फ इस पर्सन 99.8 वाले का कन्वर्ट होने का बहुत अच्छा चांस है, 99.7, 6 एंड सो ऑन। तो इनका ऑलरेडी 30 मार्क्स का गैप है, क्या ही फर्क पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस 30 मार्क्स का गैप इज आउट ऑफ अ वेटेज ऑफ 100%। 100 में से 30 मार्क्स का डिफरेंस है, 100 में से 30 मार्क्स का डिफरेंस है, तो कैन यू कैलकुलेट कि 70% में कितने का डिफरेंस होगा? तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 0.7, यू कैन से 21 मार्क्स का डिफरेंस आ गया इनके बीच में। 21 मार्क्स इज अ लॉट ऑफ मार्क्स, 21 मार्क्स इज अ लॉट ऑफ मार्क्स। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, यहां पे रिटन में किसी का एक पर्सन कैंडिडेट ए ले लो, और यहां पर उसका इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट ए ले लो, और यहां पर रिटन फॉर कैंडिडेट बी और इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बी ले लो। तो रिटन के लिए वेटेज आई कैन से कि इसका x है तो इसका x प्लस 21 है, 21 मार्क्स ज्यादा हो गया भाई किसी कैंडिडेट बी का जो कि 99.8 परसेंटाइल पे है या 99 परसेंटाइल पे। बिग डिफरेंस। आई होप यू गेट दिस। 70% का वेटेज आया, 70% 21 मार्क्स का, और ये एक्सट्रीम एग्जांपल है। लास्ट रैंक पर्सन को आपने बुलाया है, और अगर आप ये 80 से 60 में ले जाओगे, फॉर एग्जांपल किसी का स्कोर 80 है किसी का 60 है, तो 204, इनफैक्ट 100% वेटेज भी, दिस इज नॉट हाउ इट इज कैलकुलेटेड। In some cases it is calculated like this, but I'll show you another instance जहां पे तो मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है। बट अभी के लिए 21 मार्क का डिफरेंस, और इंटरव्यू में यहां पे किसी कैंडिडेट को 0 से 5 मार्क्स दे दिए, और यहां पे किसी कैंडिडेट को 25 से 30 मार्क्स दे दिए। तो इज दिस बैलेंस्ड आउट? यस। सो अभी इफ यू टेक दिस सिचुएशन कि जिस कैंडिडेट ने 99.8 लाया उसको 0 मिल जाए, और यहां पर किसी को 28 मिल जाए आउट ऑफ दिस 30, तो जो गैप है वो 7 मार्क्स की लीड ले आया ये पर्सन, जिसका चांस ही नहीं था कन्वर्ट होने का। तो एम आई सेइंग दैट यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन? नो, आई एम सेइंग आप पीछे हो 21 मार्क ऑलरेडी, बट एक मन में डाउट रहता है कि सर मेरा तो कन्वर्ट होना ही नहीं है। वो चॉइस नहीं है। ये कब? जब हमने 100% में डिफरेंस लिया। अब लॉट ऑफ केसेस, इन लॉट ऑफ केसेस व्हाट टिपिकली हैपेंस, दिस इज नॉट हाउ द कैलकुलेशन हैपेंस। कैलकुलेशन और थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, दैट गिव्स अ फेयर चांस टू एनीबडी हु हैज बीन कॉल्ड। एंड वो डिफरेंस क्या होता है कि वो एक्चुअल रॉ स्कोर लेते हैं रादर देन टेकिंग परसेंटेजेस। दिस है कि 204 में से किसी के 80 है, किसी के 110 है, तो वो क्या करेंगे, वो 100 में से मार्क्स निकालेंगे। तो रफली 100 में से इसका हाफ कर देते हैं, तो 80 में से कितने आ गए मार्क्स? 40 आ गए। इसके 204 में से 110 है, तो 100 में से कितने आते हैं? इसका हाफ कर दो, कितने आ गए? 55। तो नाउ द डिफरेंस इज जस्ट 15 मार्क्स। जो पहले 21 मार्क का था वो 15 मार्क का डिफरेंस है आउट ऑफ 100। बट इसका भी क्या करना है? 70% वेटेज लेना है। तो जब आप 70% वेटेज लोगे तो 15 का 70% कितना हो जाएगा? 10.5। सो ये दो लोगों के बीच में, एक 99 और एक 99.8 परसेंटाइलर के बीच में, अगर रिटर्न का वेटेज 70% भी है तब भी सिर्फ 10.5 मार्क्स का गैप है, विच इज हार्डली एनीथिंग। इंटरव्यू 30 मार्क्स की वेटेज में किसी को 15-17 नंबर में मिल गए, एवरेज परफॉर्मेंस करा, और किसी को 27-28 मिल गए,
तो जिसका 99 है that will be ranked above the 99.8 percentiler. And believe me, interviews make all the difference, because interview is the stage where they are wanting to select you. So I'll come back to this particular thought, कि effectively what is it that we are expected to think about and worry. हमें किस चीज का ध्यान रखना है, उस पार्ट पे हम वापस आ जाते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट मिथ्स एंड वेटेजेस. इंटरव्यूज आर अ डिसाइडिंग फैक्टर, प्लेन एंड सिंपल. इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे थोड़ा सा सीरियसनेस और बढ़ जाए इंटरव्यू स्टेज को लेकर. When you have 2.5 lakh people appearing in an exam approximately, they really don't want to do anything with those 2.5 lakh people. 2.5 लाख लोगों का कुछ नहीं कर सकते अगर उनके पास 7-8 हज़ार सीटें हैं जो फिल करनी है उन 2.5 लाख एस्पिरेंट्स में से. सो दे गिव अ टेस्ट, अ वेरी रैंडम टेस्ट लाइक कैट. डिफिकल्टी कैसी भी हो, इजी, मिक्स, मॉडरेट, डिफिकल्ट. बहुत ज़्यादा सुपर डिफिकल्ट नहीं बनाते कि सबके 0 आ जाए, बहुत ज़्यादा इजी नहीं बनाते कि सबके 100 आ जाए. दे जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट सम टॉप पीपल, दैट्स इट. तो मिक्स ऑफ इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट आ जाता है. सम ऑफ यू माइट फील सर बहुत डिफिकल्ट था, बट डिफरेंस मिल गया ना. उनको मिल गए वो लोग जो 80 लेके आ रहे हैं, जो 90 लेके आ रहे हैं, जो 60 लेके आ रहे हैं, जो नेगेटिव भी लेके आ रहे हैं. तो वो डिफरेंस चाहिए था, वो मिल गया. गुड इनफ टेस्ट. दे रियली डोंट केयर कि किस तरह का टेस्ट है. अल्टीमेटली सम पीपल आर गिवन अ कॉल. So that is the whole objective. They just want to interview. Let's say a particular IIM is interviewing 2000 candidates for its 500 seats. तो 1:4 का रेशो हो गया. Some IIMs are interviewing, let's suppose 4000 candidates for its 400 seats. तो 1:10 का रेशो हो गया. तो टिपिकली आप सिनारियो ऐसा लेके चलो कि अगर 2000 बच्चों को कोई इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, so they just want to evaluate those 2000 people, and their written marks are not really something that is setting a benchmark of any kind. They've given weightage because they want this exam to be important, but that is not the make or break. वो इंडिविजुअली एक पर्सन को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि क्या वो उनकी क्लास में बैठने लायक है. और गिवन कि वो एक रिटन एग्जाम क्लियर करके आया तो एक लेवल का फिल्टर तो ऑलरेडी हो गया, बट दैट एंड्स देयर मोर और लेस. दे विल इवेल्युएट योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, your content and understanding in general of the issues that are going on around in the world, and whether you are a right fit for the classes and the training and the learning that they are going to provide in the next 2 years. So that is the whole objective. तो प्लीज अपने मन से मिथ हटा देना कि सर मेरा कॉल आया है, मेरा क्या होगा, नहीं होगा, and so on. Let's move ahead to the next part. This is the program structure that we are going to have. So we are going to have recorded sessions across these broad topics, from interview basics to MBA specializations, resume, CV and SOP basics, economics में micro, macro. You'll have Indian economy के fundamentals, written ability के basics, monetary policy basics, budget highlights, domestic current affairs, international current affairs, stock markets. Specifically for people who get an IFT call, we'll have sessions on international business and World Trade Organization, because these are some things that IFT focuses on. Then we'll have sessions on world bodies and international treaties. Broadly, this is what the recorded sessions will entail. So this is something that I'll want you to be very, very well prepared. So for example, there have been some very interesting news events that have happened in the last so many months. They will want to know your opinions on them. For example, let's take the changes made in the new bill, which is typically titled VBG Ramji. सो दैट इज अ न्यू बिल. तो उसमें आजीविका जो शब्द जोड़ा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आजीविका? 100 डेज से 125 डेज से क्या फर्क पड़ेगा? विल इट रियली मेक अ डिफरेंस? अभी एवरेज कितना गवर्नमेंट पैसा दे पाई है इन टर्म्स ऑफ लेबर डेज? जब पहले का टारगेट 100 डेज था तो कितना अचीव कर पाए हैं? तो 100 से 125 में क्या डिफरेंस पड़ेगा, एंड सो ऑन. सो दीज आर सम वेरी पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस दैट दे विल वांट टू आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यू बिल. There could be questions on Indigo crisis. There could be questions on current affairs and events that are relevant in today's day and age. So that is one part. They will also want to know your fundamental understanding on issues like demand and supply. What happens if the demand increases? Typical laws of demand, laws of supply, exceptions to those laws of demand, laws of supply, irrespective of your specialization. So even if you are an engineer, they might just want to understand whether you have some basic idea about economics. You might say, sir, हमने तो पढ़ा ही नहीं है. It is considered a part of general knowledge rather than economics, because they are not really asking you to go into depths of some of these laws. They're just wanting you to be very aware of what these laws deal with. So all these sessions, irrespective of your specialization or
particular branch, what is expected is that you are very well prepared to handle questions that are considered as general knowledge. So general knowledge में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स, जीडीपी का मतलब क्या है, जीएनपी का मतलब क्या है, एनडीपी का मतलब क्या है, एनएनपी का so sorry, एनएनपी का मतलब क्या है, एंड सो ऑन. सो these are the sessions that we'll have in form of recorded sessions. When it comes to the interview stage, we'll have 45 minutes का comprehensive interview. Now believe me, a 45-minute duration का interview is a lot of duration. After the first 10 minutes, you will start feeling कि कब ये interview खत्म हो जाए. And do certain IIM interviews last for this long? The answer is yes, they do last for this large duration का time. And the detailed feedback is something that I will want you to look forward to, because वो feedback ही है जो ultimately आपका improvement कराएगा if you work on that feedback. There will be a detailed feedback with regards to different parameters like career goals and clarity, whether you understand why you are a right fit. So all those questions, HR related, why should we select you, what are your strengths and weaknesses, tell us something about yourself, basic common questions. तो वो सारे questions की preparation कैसी है. Then preparation on your academics. तो given your background, engineering है, medical है, commerce है, जर्नलिज्म है, किसी भी बैकग्राउंड के आप हो, तो उसकी एकेडमिक प्रिपरेशन, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस ऑन सर्टेन academic areas. So are you well prepared on those questions? Are you able to relate it to what happens in society at a practical level? For example, you belong to agriculture, so can you showcase some examples of what you have learned as to what changes you would make or would want to make or can be done with regards to the current system of agriculture in India, and so on and so forth. So रबी खरीफ क्रॉप्स वाले क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस और ज़्यादा आएंगे from any particular stream that you look at, if I take an example of agriculture like I did. So typically the expectation is जो feedback मिलेगा, it will be about your hobbies, extracurriculars, current affairs, your body language, personality, the way you behave, the way you come and greet the panel members. You will get a very detailed and comprehensive feedback with regards to mock interviews, which is ultimately the way you are expected to, which will share you a way or a path to improve and perform really well for the interview stage. What are the mutual expectations that we'll have? So making notes whenever you attend these sessions. जब भी आप ये sessions attend कर रहे हैं, please make sure that you have a pen and a special notebook. Now this notebook is extremely important. Please create a notebook that you are expected to carry all along. बहुत सारा travel, and these are some super useful वैल्यूएबल टिप्स फॉर योर प्रिपरेशन. बहुत सारा ट्रैवल में आपका टाइम जाना है, बिकॉज इंटरव्यू की लोकेशंस बहुत अलग अलग जगह होंगी. यू वुड एटलीस्ट अपीयर फॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट 8 to 10 डिफरेंट इंटरव्यूज. अगर आप अपने टॉप चॉइसेस, बैकअप प्लान्स, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो 8 से 10 अलग अलग इंटरव्यूज आप दोगे. उनके लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा ट्रैवल में. बट इफ़ यू मेक नोट्स एंड कैरी योर नोटबुक अलॉन्ग विथ यू बिफोर द इंटरव्यू, वो ट्रैवल को आप बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज कर पाओगे फॉर रिविजन. आपके हैंड रिटन नोट्स इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू रिवाइज फ्रॉम, नॉट समथिंग एल्स. तो आप फोन में ब्राउज कर सकते हैं, बट वो फोन में ही रह जाता है. तो प्लीज क्रिएट अ हैंड रिटन नोटबुक जहाँ पे आप सेशंस जो अटेंड कर रहे हो उनसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज, नोट्स, जीके रिलेटेड, नॉन जीके रिलेटेड, अपनी एकेडमिक्स की प्रिपरेशन, एवरीथिंग विल बी देयर. इफ पॉसिबल क्रिएट सेक्शंस इन देम, ताकि ये क्लियर हो कि यार एकेडमिक्स वाला बंच यहाँ पर है. यूज स्टिकी नोट्स टू सेपरेट दो सेक्शंस. कि एकेडमिक्स का रिविजन करना हुआ तो एकेडमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हमने नोट्स बना के रखे, वो वहाँ रिवाइज कर लेंगे. Remembering data without getting overwhelmed. For example, a lot of standard facts and figures would be thrown at you during the sessions. You're expected to remember them. मैंने जनरली पूछ लिया कि ऑयल की प्राइस क्या है इन डॉलर्स पर बैरल, एंड देन पूछ लिया गोल्ड की प्राइस क्या है, देन पूछ लिया रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इंडिया की जीडीपी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, किस रेट से ग्रो करने वाली है, जो रेट से ग्रो करने वाली है वो रियल रेट ऑफ ग्रोथ है या नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ है. You will be just barraged with hell number of questions which deal with data. And a simple question like population of India, and then when you quote, they will want to know कहाँ से पढ़ा, why are you saying this. So there will be a lot of information that you will have to remember and process. So make sure that you create a separate 2-3 pager का document जहाँ पे standard values की, अगर किसी ने पूछा रेपो रेट तो मुझे exactly याद है कि रेपो रेट की वैल्यू ये है as on date. उसके बाद revisions हुए होंगे तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इस डेट का तो मुझे रेपो रेट का वैल्यू पता है.
remembering quotations without getting overwhelmed. A fantastic way to have a very structured orientation for a writing ability test. अगर कोई essay है, same is the case with group discussion, is to remember quotations from famous people. तो once you share that quotation with the actual ओरिजिनल ऑथर, प्लीज ऐसा नहीं करना है ग्रेट मैन वन सेड, जैसा स्कूल में ऐसे लिखते टाइम शायद आप करते थे, ग्रेट मैन वन सेड डजंट वर्क इन IIM के राइटिंग एबिलिटी टेस्ट. यू आर एक्सपेक्टेड टू कोट द एग्जैक्ट ऑथर जिन्होंने वो कोटेशन दिया हो, एंड इफ दैट इज रेलेवेंट टू द टॉपिक, दैट क्रिएट्स अ गुड स्ट्रक्चर फॉर यू टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक. रिमेंबर, किसी भी राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में स्टार्टिंग का पैराग्राफ और एंडिंग का पैराग्राफ बहुत क्रूशल है, बिकॉज दैट विल सेट द टोन एंड एक्सपेक्टेशंस. अगर पहला पैराग्राफ इंप्रेसिव हो गया, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक टू गेटिंग गुड मार्क्स. और वो पहला पैराग्राफ अच्छा हो, इसके लिए कोटेशंस अगर आपको याद है तो दैट विल बी सुपर यूजफुल. दीज आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन द सेशंस दैट कम अहेड. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज बुलेट पॉइंट अप्रोच. प्लीज डू नॉट मेक नोट्स जहां पैराग्राफ के पैराग्राफ भरे हुए हैं और टिपिकल स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में जो हम आंसर्स भरने की आदत डेवलप कर चुके हैं, उसी मेंटालिटी के साथ कर रहे हैं. नो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, if India's GDP is expected to grow at a certain rate, can you tell me 3 reasons why is that so? So you should be very clear. The 3 reasons are, we have a great population dividend. So आपने population dividend बस इतने 2 words लिख लिए, वो बहुत है. You should know how to elaborate that particular part. तो base value for GDP is low. Second reason for us growing at high percentage and so on. तो आपको वो 3 bullet points दिमाग में एकदम बहुत अच्छे से clear होने चाहिए. They should not be very lengthy, verbose kind of statements. Bullet points, 2-3 words, very clear in your head. How will you elaborate them? Attending sessions, please do not miss out on these sessions. Every session is curated with a lot of thought and logic. Nothing is irrelevant. तो आप बहुत सारे YouTube वीडियोस देख सकते हो जहाँ टाइम वेस्ट होगा. उसकी बजाय आई स्ट्रांगली रिकमेंड जस्ट स्टिक टू अटेंडिंग दीज सेशंस. इफ यू फील देयर इज अ सर्टेन टॉपिक जिसमें बहुत इलैबोरेट कुछ पढ़ने की जरूरत है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू सम अदर सोर्सेज, बट प्लीज अटेंड सेशंस. दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. लास्ट इज न्यूज़पेपर्स. नाउ न्यूज़पेपर में बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर GDPI में न्यूज़पेपर पढ़ना इज मैंडेटरी, जरूरी है. माई रिकमेंडेशन विल बी, rather than reading the whole newspaper, wasting 3-4 hours in one day ka newspaper, please make sure that you pick up current trending topics that are creating a lot of discussion and buzz, and be very detailed and thorough with it. I'll also share a lot of interesting sources. For example, bills related. अभी VBG, RAMG एक बिल आया, तो उसकी डिटेल्स, एक्चुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ओपिनियन बिल्डिंग कहाँ से हो. सो फॉर एग्जाम्पल, prsindia.org is a fantastic site, prsindia.org. But I'm not sharing all the links at this point in time. We'll do that in sessions to come. But you will know the actual sources जहाँ से आपको वो particular चीज़ें पढ़नी है. Some of them are fantastic sources. You can quote them in the interview. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ये आपने पढ़ा है, तो ये how do you know this? You can say that I've gone through this website prsindia.org, where they have uploaded the official document and I've read the official document of the actual bill. Fantastic. Your job is already done when you have started really well. So this is a part for mutual expectations. Final objective is to be in this state. तो objective ये है कि आप इस state में आ पाओ where you actually convert all your calls. So with this mindset, make sure that you attend sessions, stay with us. Let us know if you want any more help. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.